We will start this session with 3 Om recitations and prayer to sage Patanjali. Please sit straight, adopt Dhyana Mudra, tip of index finger and tip of thumb. Keep your wrists on your knee joint. Roll your shoulders back straight, chin parallel to the ground. Slowly, gently close your eyes. Now focus on your breathing. Deep breathing. Deep inhale. Om. 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 Please join your palms. Prayer to sage Patanjali. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि आबाहुपुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्. Hari Om. Slowly open your eyes and let us start with this session, chakra meditation. So nowadays it's in fashion, I can say, because everyone is very much interested in understanding what is chakra meditation, and everyone wants to learn about chakra meditation. So before going to that, I would like to explain basic information about chakra. What is chakra? Most of the group members are yoga teachers and they know about chakra. They are aware about yoga and everything. But still some of the group members, they are not aware. They are not that much into yoga. So I would like to first explain about this concept of chakra meditation. And before going to that, about meditation. Why to meditate? First question arises in my mind when it comes to when everyone asks me, or when my patients, they ask me about meditation. Doctor, how to meditate, should I start with meditation, should I go to this class, should I join pranayam class or this and that, because nowadays it's very much popular. So first of all, you should think about meditation and why to meditate. Why I'm going to learn this technique, or why to meditate. This question you should try to first of all ask yourself, and then to understand the concept behind it. आजकल क्या होता है, mostly people, they go and they join classes of meditation, they start learning meditation just because of fashion, just because of everyone else is doing it. But first of all, we need to understand, is it correct technique for me, for my body, for my mind, for my physical, mental state? Directly going to the meditation class and sitting for half an hour, or it's not possible. Everyone, सबको जो इफेक्ट्स है मेडिटेशन से वो नहीं मिलने वाले. उसके लिए कुछ बेसिक फाउंडेशन, बेसिक तैयारी होती है जो हमें करना जरूरी होता है. Otherwise, directly going and starting with, and chakra meditation is very
different kind of meditation. Like there are types of meditation described in various texts, like Hatha Yoga Pradipika, in Gheranda Samhita. There are popular texts related with yoga and techniques of meditation. So those who are not aware about it, those who are not knowing about it, and if that person goes to the class and starts meditating, it's of no use. क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और इसका हमारे बॉडी पे इफेक्ट होने वाला है या नहीं. अदरवाइज इट्स जस्ट अ फैशन. आप जाओगे, बैठोगे आधा एक घंटा और कुछ नहीं होने वाला. सो दैट्स व्हाई मैंने ये क्लास क्यों प्लान किया कि आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि मेडिटेशन क्या है, क्यों करना चाहिए, और जो योग टीचर्स है यहाँ पे उनको भी पता होना चाहिए कि किसको किस लेवल पे एडवाइस करना है, कौन क्लाइंट आपका आप किस लेवल पे है और वो आपके पास आ रहा है और आप उसको क्या सजेस्ट कर रहे हो, ये आपको भी पता होना चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ मेडिटेशन इज, जैसे संस्कृत में हम बोलते हैं ध्यान. सो केयरफुल कंसंट्रेशन और जस्ट टू फोकस, ऐसे हम लिटरल उसका ट्रांसलेशन बोल सकते हैं कि जस्ट टू फोकस. एंड चक्र मेडिटेशन इज ऑफ कोर्स फोकसिंग ऑन योर चक्रास, दैट इज द लिटरल ट्रांसलेशन. अब चक्र ये पार्ट जो आता है वो तंत्र में आता है. योग इज डिराइव्ड फ्रॉम तंत्र. एक्चुअली योग तंत्र का ही एक पार्ट है, लेकिन तंत्र एक अलग एस्पेक्ट है योग का और उसको समझना और थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. इसलिए हमें सुपरफिशियल उसका अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है कि व्हाट इज तंत्र. लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ तंत्र इज अगेन तनोति इति तंत्रः, टू स्प्रेड. Tantra is the meaning of tantra is to spread. So in tantra चक्र मेडिटेशन डिस्क्राइब किया है. ये मेडिटेशन का एक टाइप है. इट इज रिलेटेड विथ कुंडलिनी शक्ति. व्हाट इज कुंडलिनी? दैट इज इनर पावर. दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन soon. But first of all, we will talk about first meditation. What is dhyana? So as I have mentioned, dhyana is focus or to concentrate. So ध्यान का जो एक्सप्लेनेशन है वो हठ योग में भी आया है, पतंजल योग सूत्र में भी आया है. अलग अलग स्क्रिप्चर्स में आपको अलग अलग तरीके के ध्यान आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे. और डोंट गेट कंफ्यूज, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हर एक ध्यान टेक्निक का गोल एक ही है, तो वो हमें समझना पड़ेगा. और उस ध्यान में जाने के लिए, वो ध्यान सीखने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी जो तैयारियां, बेसिक फाउंडेशंस, फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल, इन चारों एस्पेक्ट से हमारी तैयारी कितनी है, वेदर वी आर स्टैंडिंग ऑन फर्स्ट स्टेयर और सेकंड और स्टेप या थर्ड स्टेप पे है, वो समझना बहुत जरूरी होता है. और इसके लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है. ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यूट्यूब पे देख के या कोई वीडियोस देख के ये होने वाला नहीं है. डोंट गो फॉर दैट, डोंट चूज दैट ऑप्शन. मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि बहुत जगह पे आपको एडवर्टाइज दिखते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, एक क्या वर्कशॉप है, कुंडलिनी अराइजिंग वर्कशॉप है, या चक्र एक्टिवेशन वर्कशॉप है, 3 घंटे का वर्कशॉप है, 2 दिन का वर्कशॉप है. इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. ये इतना सिंपल नहीं है. कुंडलिनी जागृति के लिए मिनिमम 12 इयर्स लगते हैं, जो हमारे वशिष्ठ योग में या अलग अलग स्क्रिप्चर्स में लिखा है. तो उन्होंने एविडेंस के साथ वो प्रूफ किया है कि 12 साल अगर आप डेडिकेटेडली प्रैक्टिस करते हो तब कुंडलिनी जागृति होती है. तो वो योग शिक्षक यहाँ पे जो है, योग में जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनके लिए ये इंफॉर्मेशन है. बाकी हमारे लिए कैसे है, हमें जब मेडिटेशन का जब टॉपिक आता है तो जस्ट हेल्थ एंड वेलनेस के लिए हम मेडिटेशन की तरफ देखते हैं एज अ रेमेडी. हेल्थ इश्यूज, फॉर मेंटल वेलबींग, टू बैलेंस योर स्ट्रेस एंड एंजाइटी लेवल्स. तो ये एक्चुअली हमें ये समझना होता है कि हमारे डे टू डे लाइफ में human body is a field of complex play. We can say it is a field of complex play of forces. जो forces होते हैं वो material, physical, psychological,
एंड स्पिरिचुअल, ऐसे फोर्सेस होते हैं, इसमें हमारा ये सब प्ले चल रहा है। ओके, तो ये फोर्सेस अपलिफ्टिंग भी होते हैं, स्पिरिचुअल भी होते हैं, और कभी कभी डार्क भी होते हैं एंड डेंजरस भी होते हैं। तो इट डिपेंड्स, हमारी बॉडी जो एक्सपीरियंस करती है, तो द नेचर ऑफ द फोर्स वी आर अट्यून्ड, isn't it? और जो जो मैंने अभी फोर्सेस आपको एक्सप्लेन किए कि फिजिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, मे बी पॉजिटिव, निगेटिव फोर्सेस में ये सब प्ले चल रहा है हमारा, और डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द force we are attuned to, we experience a state of health or state of illness. तो health and illness इन forces पे depend होता है, the nature of the force we are attuned to. So कभी कभी हम क्या experience करते हैं कि disintegration, disorder, then dullness, depression. So that comes under negative dark force. And harmony, then energy, enthusiasm, happiness, वो होता है पॉजिटिव, एंड फेथ एंड विल टू लिव लाइफ हैप्पीली, ये सब होता है, वो पॉजिटिव फोर्स होता है। सो इसी फोर्सेस में जो एनर्जी है, एनर्जी फोर्स ऑफ फिजिक्स थोड़ा बहुत हमें पता है, तो उसमें हम हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो व्हाट वी नीड टू बैलेंस दिस फोर्स, ये बैलेंसिंग होना एंड मोर पॉजिटिव फोर्स हमारे अंदर क्रिएट करना, ये हमारी जो है क्या बोलते हैं, एक हमारे लिए बहुत ज्यादा इस करंट सिचुएशन में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टुडेज वर्ल्ड इज मोर मटेरियलिस्टिक, मोर टेक्निकल, एंड वी आर डिसकनेक्टेड विथ नेचर। कि पास्ट जो हमारे एंशियंट जो पीरियड में ये सारी जो भी नए नए डिजीजेस है, या मे बी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल जो भी डिस्टर्बेंसेस है, पीपल दे यूज टू टैकल और हैंडल इट वेरी इजीली, और वो होता ही नहीं था। इनफैक्ट 10% में भी होता होगा, बट नाउअडेज रेशो कैसे हो गया है, अलग हो गया है। वी आर मोर suffering, we are more experiencing more and more symptoms related with physical, mental, and issues related with whatever, वो अब मैं ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगी, that we all know. So हमें ये पता नहीं है कि हमारी बॉडी में उसको हैंडल करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए एनर्जी फोर्स जो भी रिक्वायर है, दैट इज एग्जिस्टिंग इन आवर बॉडी ओनली. If we are connected to nature, we can understand that force and we can utilize that energy to overcome all the obstacles or all the experiences we are facing due to this materialism, or maybe this connection with nature, and we are more relying on maybe modern technology. अब मेडिसिन में ही आप देखो, जैसे मॉडर्न मेडिसिन इज गुड, मे बी इन इमरजेंसीज, इन एडवांस सर्जरीज, इट्स गुड. But what is happening nowadays, we are very much dependent on modern medicine like क्रोसिन, एंटीबायोटिक्स, है ना. हम थोड़ा सा भी अगर एक भी सिम्टम आ जाए, we go for that medicine, we go for that chemical, we take that and we get relief, instant relief, and हम डिपेंड हो रहे हैं उस पे. हमें ये पता ही नहीं है कि हमारे अंदर वो एनर्जी है कि हम उसके साथ फाइट कर पाएंगे. Physical, mental, spiritual, emotional, any obstacle, any experience, any symptom, if you are dealing with it, you are not aware about that inner energy, that inner force which is there in your body in latent phase. वो नहीं है, क्योंकि वो it is covered with toxins. क्या हो रहा है, हम जितना नेचर से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, हमारे अंदर की एनर्जी, हमारे अंदर की पावर, फोर्स जो है हमें नेचर ने ही दी है बाय बर्थ, वो क्या हो रहा है, इट्स लाइक मिरर कोटेड विद डस्ट. तो हमें वो डस्ट दूर करके हमारे अंदर की जो एनर्जी है उसको एक्टिवेट करना है. क्यों? हम इसलिए कि हम फेस कर पाए इन सब फोर्सेस को, जो निगेटिव फोर्सेस है, जो हमें डिग्रेड कर रहे हैं, जो हमें ज्यादातर
डिजीज की तरफ लेके जाते हैं. And that is the goal of chakra meditation in nowadays. If you are not looking for kundalini jagruti and higher achieving higher stages in yoga, etc., that is the another aspect. But यहाँ practically हम चक्र मेडिटेशन क्यों करना चाह रहे हैं कि हमें वो जो डस्ट है अंदर, जो टॉक्सिन है, जो हमें नेचर से बहुत दूर लेके जा रहा है, और वी आर नॉट कनेक्टिंग, we are not able to connect ourselves with nature. We are not, सबसे सिंपल, हम हमारा सर्कैडियन रिदम भी नहीं मैच कर पाते हैं. ये तो बहुत बेसिक है कि सर्कैडियन रिदम, जब व्हेन सन गोज अप उसके पहले हमें उठना है, रात को सोना है जल्दी, दिस एंड दैट, एवरीथिंग वी नो एवरीथिंग अबाउट इट, बट स्टिल हमें वो भी पता नहीं है. वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट आवरसेल्फ विद दैट नेचर. दैट्स व्हाई to develop that connection, we need to practice meditation, and most powerful technique is chakra meditation. तो पहले ध्यान, फोकस और कंसंट्रेशन, यही सिंपल मीनिंग है ध्यान का. और चक्र मेडिटेशन में हम चक्रों पे फोकस और कंसंट्रेट करेंगे. अब चक्र क्या है वो हमें उसके लिए थोड़ा समझना पड़ेगा, राइट. बट अब हमें पहले जो मैंने कहा था कि बेसिक एक फाउंडेशन होना चाहिए. एक्चुअली मैं जो ये बात कर रही हूँ मोस्टली लोगों को पसंद नहीं आती है, क्योंकि दे वांट इंस्टेंट रिजल्ट्स. जैसे मैंने अभी अभी मेंशन किया, जस्ट नाउ आई हैड मेंशन लाइक एलोपैथी टैबलेट्स, वी गो फॉर मॉडर्न मेडिसिन बिकॉज ऑफ इट गिव्स अस सिम्पटोमेटिक रिलीफ. So when people come to me and ask about meditation or any remedy or yogic practice, they are thinking about, or they want instant relief. But just first of all, keep in mind, yoga is not medical science. योग मेडिकल साइंस नहीं है. ये आपको किसी भी दवा, किसी भी डिजीज की दवा नहीं दे रहा है. It's about moksha. It's about beyond that. It's about beyond the realms which are there, which are not grasped by our senses. हमारे जो पंच ज्ञानेंद्रिय है, 5 जो सेंस ऑर्गन्स है, उनसे भी जो समझ में नहीं आता, जो ग्रास्प नहीं होता, जो अंदर हमारे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल जो बॉडी है उसके अंदर जो चल रहा है, वो समझने की प्रक्रिया है, वो योग है और वो ध्यान है. तो नाउ यू कैन इमेजिन और यू कैन थिंक कि ये कितना डीप है, और हम इसको सुपरफिशियल वे से नहीं देख सकते हैं, राइट. तो इसके लिए हमें ये समझना, पहले हमारा मेंटल जो है प्रिपरेशन ये करना जरूरी है. बिफोर स्टार्टिंग ध्यान, you should educate your mind that it is not symptomatic relief, it is not medical science, it is not meant to cure your disease. It is science of moksha. It is science which gives you knowledge about evolution, about cosmos, about nature, about everything. What knowledge there lies in outside world, वो हमें मिलता है, और तब हमारी अपलिफ्टमेंट या स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होती है. सो दिस इज ध्यान. दैट्स व्हाई ये अगर आप अपने माइंड को एजुकेट करोगे, उसके बाद आप ध्यान का सही अर्थ, सही मीनिंग समझ पाओगे, और फिर आप आपके एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेंगे कि मैंने इतने मैं 6 महीने से ध्यान कर रही हूँ, मैं ओम का रिसाइटेशन कर रही हूँ, आई एम रिसाइटिंग ओम फॉर हाफ एन आवर, आई एम रिसाइटिंग दिस मंत्र फॉर 1 hour, बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग रिजल्ट्स, बिकॉज यू आर keeping some intentions in your mind, and you want something from that, some fruit from that. And इसीलिए भगवद गीता में 6th चैप्टर में श्री कृष्ण ने क्लियरली लिखा है कि ध्यान आप करना चाहते हो, ध्यान योग नाम का वो चैप्टर है, उसमें उन्होंने कहा है कि देयर आर 2 types ऑफ प्रैक्टिशनर्स. तो इनिशियल जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो कर्म योगी होने चाहिए.
एक्शंस एंड देन कर्म योग में आप जब मास्टरी गेन करोगे तभी आप ध्यान समझ पाओगे, तभी आपको ध्यान के रिजल्ट्स आपके बॉडी पे माइंड पे मिलना शुरू हो जाएंगे. सो व्हाट इज कर्म योग? कर्म मीन्स एक्शन. सो श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, ध्यान करने के पहले आपको कर्मयोग पता होना चाहिए. एक्शंस और ड्यूटीज विच आर देयर, जो आपकी ड्यूटी है यहाँ एज अ ह्यूमन, आप यहाँ आए हो तो आपकी जो ड्यूटीज है वो आपको निष्काम रूप से करनी चाहिए. निष्काम मतलब विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी फ्रूट. तो आप सोचिए एक सेंटेंस में कितना बड़ा उन्होंने फिलोसॉफी बोल के रखी है, और हम लोग उल्टा करते हैं. Nowadays, why we are suffering with mental fluctuations and psychological problems and this and that? Because we expect a lot and we accept nothing. Acceptance नहीं है, expectations lot, and then we compare ourselves. है ना? तो ये जो डिमांड है, ये जो एक्सपेक्टेशंस है, दैट ऑल कम्स अंडर निगेटिव फोर्स, जो मैंने अभी 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 मेंशन किया. तो निष्काम कर्म की प्रैक्टिस आपको शुरू, दिस इज नॉट फिलोसॉफी क्लास बट आई नीड टू एक्सप्लेन दिस बिफोर गोइंग टू ध्यान, बिकॉज इफ यू विल स्टार्ट डायरेक्टली यू विल नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ध्यान. तो कर्मयोगी ये पहला स्टेप है. आपको कर्मयोग फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी आप ध्यान का जो हायर स्टेट है वो भी एक्सपीरियंस कर पाओगे, और जो आपको ध्यान से आपके अंदर जो चेंजेस चाहिए वो आप एक्सपीरियंस कर पाओगे. अदरवाइज यू विल गो ऑन प्रैक्टिसिंग years and years and you will not get that effect what you are expecting. So acceptance about our body, हमारी जो अभी स्टेट है, करंट प्रेजेंट स्टेट, मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, फिजिकल, जो भी है उसको पहले एक्सेप्ट करना. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अदरवाइज फ्लक्चुएशंस ध्यान में बैठने के बाद फोकस, कंसंट्रेशन इज द फर्स्ट टेक्निक. ध्यान एक प्रोसीजर है, तंत्र एक टेक्निक है. टेक्निक मतलब स्टेप बाय स्टेप उसको अचीव करना होता है. इट्स नॉट लाइक कि आप डायरेक्टली वो कर पाओगे. तो ये टेक्निक होती है, उसमें फोकस पहला स्टेप होता है. फोकस आप कब कर पाओगे? जब आपके माइंड में बिल्कुल भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, आपका माइंड प्रॉपरली उसी चीज के बारे में सोच रहा है, देख रहा है जिस पे आप फोकस कर रहे हो. इट हैज लॉट्स ऑफ न्यूरोलॉजिकल बेनिफिट्स. एक्चुअली इट्स बियॉन्ड दैट, not only neural wiring firing and this and that. The effect of just focus or concentration is beyond that. तो हमें पहला एकदम बेसिक सिंपल स्टेज जो है ध्यान का, हमें फोकस करना है. तो वो फोकस कब हो पाएगा? तो हमारी प्रिपरेशन क्या चाहिए उसके लिए? एक्सपेक्टेशंस. Am I audible? Okay. My internet is little bit. So प्रिपरेशन ऑफ ध्यान में भगवत गीता में जो कहा है कर्मयोग, वो आप लोगों को आज से ही उसके बारे में सोचना है. और कर्मयोग में जो आपकी ड्यूटी है, गिव योर 100% टू दैट. इफ यू आर हाउसवाइफ, do your work properly, focus on that. What are your duties as a housewife? If you are working somewhere, काम पे ध्यान दो 100% and be in that present state always. हम काम पे ध्यान 100% डेक्सटेरिटी कब दे पाएंगे? जब हम उस समय वहां पे प्रेजेंट हो. मेंटली, फिजिकली तो हम रहते हैं, लेकिन अभी आप मे बी ये सुन रहे हो, सुनते सुनते आप डिनर बना रहे हो, सर्व कर रहे हो, खा रहे हो. सो यू आर नॉट प्रेजेंट हियर mentally now at this moment. So be in that moment always, or most of the time
99% हम लोग सब जब काम कर रहे होते हैं ना, तो उसके आगे या पीछे कुछ सोच रहे होते. मे बी वी रन इनटू फास्ट, मे बी वी स्टार्ट इमेजिनिंग about future, and that is not correct. That is first obstacle when we start to focus or when we start first step of ध्यान, right? तो आज से यही प्रैक्टिस करनी है कि उस मोमेंट में रहना है. मुझे आगे या पीछे का, अगेन हम जब कुछ भी काम, आप देखो कर्म, जब हम भगवत गीता इज द ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल यू नो, आप अब सब लोग इतने बड़े बड़े लोग उस पर बात करते हैं, आप कभी अगर वक्त मिलेगा तो सच में वो पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करो. बट एक ही सेंटेंस में श्री कृष्ण ने कहा है कर्मयोग इज वेरी इंपॉर्टेंट. कर्मयोग मीन्स जो निष्काम कर्म विदाउट एक्सपेक्टेशंस, आपकी जो ड्यूटीज है as a mother, as a housewife, as a working woman, as a whatever your duty, you should do that with dexterity. 100% उसमें आपको present रहना है. Otherwise what happens, your mind starts running here, there, past, future, and you don't pay attention to your work, and that is not your karma yoga. वो कर्मयोग नहीं है. एंड वी गैदर ओनली एंड ओनली जो भी कर्म के वजह से हमारे इम्प्रेशंस हमारे अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं. एंड देन अगेन दिस इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ कर्मयोग, के वो कर्म हम अपने हर एक जन्म में लेके चलते हैं. जो कर्म अभी हम कर रहे हैं उसके इम्प्रेशंस हमारे साथ रहते हैं, मृत्यु के बाद भी रहते हैं, और उसको हमें कहीं ना कहीं रिटर्न करना पड़ता है. So that's why pay attention whatever you are doing, and that is first rule. And then you will enter into dhyana yoga properly. Then your mind will become educated mind, conditioned mind, कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मैं फोकस कर रही हूँ, मैं फोकस यहाँ पे कर रही हूँ, इस ऑब्जेक्ट पे कर रही हूँ, और ये ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट और मैं और प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन. मैं, मेरा ऑब्जेक्ट में भी ओम का कोई फोटो हो, या जो भी आपकी डेटी है, गणपति है या लक्ष्मी है, या जिस पे आप फोकस कर रहे हो वो है. और प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, उस प्रत्यय एकतानता, मतलब मैं उसमें कोई भी डिस्टर्बेंसेस नहीं आने दे रही हूँ. दैट इज मेडिटेशन. नाउ जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट इट, कि आप क्लास में जाते हो, कहाँ पे मेडिटेशन सीखने जाते हो, कोई वर्कशॉप अटेंड करते हो, वेदर यू आर एबल टू डू दिस प्रॉपरली. नहीं, हम वर्कशॉप में बैठ के इधर उधर सब देखते रहते हैं, ये फोकस, ये कंसंट्रेशन हम नहीं कर पाते हैं. तो ध्यान इज पर्सनल एक्सपीरियंस. सो दैट्स व्हाई ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना जरूरी है कि ध्यान कोई सिखाएगा और आप करोगे नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं. इट इज योर ओन एक्सपीरियंस. यू नीड टू सिट एट वन प्लेस, यू नीड टू फोकस, and you need to control your mind. You need to concentrate on the object whatever you are focusing on. And in chakra meditation we are going to focus on our chakras, right? तो ये फोकसिंग क्यों करना है, आप अभी आप समझ गए कि नहीं तो फास्ट फॉरवर्ड या पास्ट या इधर उधर माइंड हमेशा क्या होता है, दौड़ता रहता है. इट्स कीप ऑन रनिंग, और हमें वो नहीं चाहिए. नहीं तो ध्यान आपको प्रॉपर उसका बेनिफिट कभी नहीं मिलेगा. ये क्लियर हो गया. नेक्स्ट इज फिर ध्यान योग आप शुरू करने के पहले ये तो आपको पता होना चाहिए, ये कंसेप्ट पता हो गया. आपकी बॉडी जो है, अब फिजिकल फिटनेस एक जरूरी होता है कि आप एक जगह पे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट स्टिल अपराइट पोजीशन में, वहां भी श्री कृष्ण ने बताया है समकाय शिरोग्रीवम. स्पाइनल कॉर्ड जो है स्ट्रेट होना चाहिए, चिन पैरेलल टू द ग्राउंड, जैसे मैं इंस्ट्रक्शंस देती हूँ ओमकार के पहले, वैसे आपको बैठना है. एंड विदाउट एनी एक्स एंड पेन्स, मे बी 20 मिनट्स, 30 मिनट्स हम अगर बैठ रहे ध्यान में, तो ये हर एक को पॉसिबल नहीं है. तो इनिशियली यू कैन सिट ऑन चेयर,
अगर आप नहीं बैठ पाते हो तो चेयर पे करना बिल्कुल कोई गलत नहीं है, बट स्टिल फिजिकल फिटनेस जो है वो आसन से, मुद्रा, बंध, इनके प्रैक्टिसेस से आपको लाना है। ये सेकंड रिक्वायरमेंट है कि आप ध्यान अगर बैठ के करेंगे तो इसके बेनिफिट्स और ज्यादा मिलेंगे। तो हमें जो फिजिकल फिटनेस है उसके लिए बैठने के लिए स्टिल स्टेडी बैठने के लिए जो फिटनेस चाहिए, कहीं पे बैक एक हो रहा है, शोल्डर पेन हो रहा है, नी पेन हो रहा है, एंकल मैं रख नहीं पा रही हूँ नीचे, तो ये अगर है तो हमें पहले क्या करना है, हमें अपनी बॉडी को उतना फिट बनाना है। एंड वो तो आप योग क्लास आसन प्रैक्टिस से अचीव कर सकते हो, दैट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। मेन है कि आपको बैठना है, फोकस करना है एंड कॉन्सेंट्रेट करना है, राइट। एंड कर्मयोग, और कर्मयोग फॉलो करने के लिए हमें अल्टीमेटली यम नियम का पालन करना ही पड़ता है। सो यू नीड टू नो अबाउट यम नियम, सोशल एंड पर्सनल रिस्ट्रेंट्स, और सब जो पतंजलि ने बताया कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, किसी को मारना नहीं है, फिजिकली मेंटली हर्ट नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, ये सब आपको सारे जो नियम, यम नियम है उनका आप अगर फॉलो करोगे तभी आप कर्मयोग प्रॉपर वे से फॉलो कर पाओगे, तभी निष्काम कर्म के योग की तरफ आप जाओगे, और उसके बाद आप ध्यान योग समझ पाओगे, और उसके बाद आप उसका एक्सपीरियंस कर पाओगे और उसके बेनिफिट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज तंत्र। ये सब है, ये तंत्र है। और ये तंत्र क्यों है? बिकॉज दिस इज टेक्निक, स्टेप बाय स्टेप टेक्निक हमें समझना चाहिए और तभी हम उसको अचीव कर पाएंगे। तो अब तंत्र योग में आता है चक्र मेडिटेशन। अब ध्यान का एक आपको बेसिक फाउंडेशन समझ में आ गया। अब चक्र मेडिटेशन में हमें फोकस करना है चक्रों पे। व्हाट इज चक्र? चक्र का लिटरल ट्रांसलेशन है व्हील, है ना। तो व्हील जैसे मोशन में अगर उसको एक फोर्स मिलता है, एक एक्सटर्नल फोर्स मिलता है, तो वो मोशन में राउंड राउंड उसका जो मूवमेंट होता है, और उससे एनर्जी, जैसे हमें ये पता है ना, विंडमिल, विंडमिल हम देखते हैं ना, उससे एनर्जी कैसे मिलती है, एक मोशन में वो ये करते हैं और उससे एनर्जी प्रोडक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। सो हमारी बॉडी में भी ऐसे एनर्जी चैनल्स है, जैसे मैंने इनिशियली आई हैड मेंशन दैट वी हैव दैट एबिलिटी, वी हैव दैट एनर्जी, we have that power to overcome all those obstacles or positive or negativity, or mostly negativity which is there, negative force which is there, which is affecting our health, physical, mental. We have innate power and we need to activate that, isn't it? So ये पावर जो होती है वो उनके पावर हाउस और पावर स्टेशंस हमारे बॉडी में है, और उनको कहा जाता है चक्र। तो जो एनर्जी in the form of prana, vital energy in the form of prana, it is circulating inside our physical body, in our body, and that energy is channelized या स्टोर होती है, और वहां पे अगर हम उनको एक्टिवेट करेंगे, वहां पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी और जनरेट होगी, इजंट इट? और जो भी उस पे अभी टॉक्सिन्स या जो भी कवर या डस्ट का कवर, जैसे मैंने कहा मिरर पे जैसे डस्ट कवर होता है, वैसे हमारे इन एनर्जी चैनल्स पे, इन एनर्जी पावर हाउसेस पे कवरिंग्स होते हैं। और वो क्यों होते हैं? हम अनेक जन्म लेते हैं, वी आर ट्रेवलर्स, एक योनि से दूसरी योनि, और हम कर्म के इंप्रेशंस गैदर करते रहते हैं। उसके वजह से ये इम्प्यूरिटीज हमारे चक्रों में, चैनल्स में आती है। जहां ये एनर्जी फ्लो करती है वहां पे ये इम्प्यूरिटीज ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करती रहती है। तो इन वेरी सिंपल वे हमें बस यही समझना है कि इन इम्प्यूरिटीज को हमें दूर करना है, चक्रों को, एनर्जी को एक्टिवेट करना है,
और ये एक्टिवेशन हो जाने के बाद हमारे जो सेंसरी परसेप्शंस है, बियॉन्ड सेंसरी परसेप्शंस, हमारी इनर पावर, जो इनर रेल्म्स जो है, जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, वो हम लोग समझ पाएंगे, हम नेचर से कनेक्ट हो जाएंगे, और तब आप फर्क देखोगे कि अगर कोई स्पाइडर हमारे बाजू में चल रहा है वॉल पे, तो हम समझ नहीं पाते, अगर हम जब तक देखते नहीं तब तक हमें सुनाई देता है क्या स्पाइडर्स के स्टेप। लेकिन जब ये एनर्जी चैनल्स एक्टिवेट होना शुरू होते हैं, तब सेंसरी ऑर्गन्स इतने शार्प हो जाते हैं कि हमें सुनाई देता है कि वहां पे स्पाइडर चल रहा है। बट इट टेक्स मोर देन 12 years डेडिकेशन एंड डिवोशन, फेथ, और ये क्रिएट करना है हमें, ये हमें स्टेप बाय स्टेप उसकी तरफ जाना है। नाउ आई एम गिविंग दिस एग्जांपल एंड यू मे बी यू आर वंडरिंग कि ये हो भी सकता है या नहीं, मे बी डाउट आ जाता है, इजंट इट? सो ये डाउट नहीं आए इसलिए हमें हमारी फाउंडेशन, फिजिकल मेंटल सब फाउंडेशन तैयार करना है, और हमारा गोल वो है। एक्चुअली चक्र मेडिटेशन हम जब करते हैं तो इट्स नॉट जस्ट improving your health, your well-being, or maybe eradicating diseases in your body. ये हमारा बहुत संकुचित गोल हो गया। अगर हम उससे बड़ा गोल रखते हैं तो इसका जो इसकी ब्यूटी आप समझ पाओगे। तो इन शॉर्ट, चक्र मेडिटेशन इज एक्टिवेटिंग योर इनर innate power and energy, so that this vital energy which we are taking inside our body in the form of prana or shwasa, and it is circulating inside your body, and it is giving you that हम जो बोलते हैं ना कि जब तक प्राण है तब तक हम जिंदा है, प्राण चला जाएगा तो हम निष्प्राण हो जाएंगे। तो उसको एक्टिवेट करना है, उसको बढ़ाना है, और हमारे जो इनर पावर को हमें एक्सपीरियंस करना है, इवोक करना है, और यही पावर है, उसी को कुंडलिनी नाम दिया गया है। कुंडलिनी जो है वो इसी को कहते हैं। इट इज नॉट रॉकेट साइंस, जैसे लोग इसको बढ़ा चढ़ा के या तंत्र और ये सब करके जो ये करते हैं ना, बताते हैं हम लोगों को, इट प्रोजेक्ट करते हैं। दैट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, एवरीवन हैज दैट पावर। सबको कुंडलिनी शक्ति है, सबकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सकती है, सबको वो एनर्जी मिल सकती है। लेकिन ऐसे नहीं कि आज आप बैठ गए तन चक्र के लिए एंड आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई, नहीं, ये स्टेप बाय स्टेप होती है। वो जैसे जागृत होती है वैसे ही वो फिर से ये भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है उसकी पावर। अगर हम फिर से अपनी लाइफस्टाइल, इफ वी विल अगेन गो बैक टू आवर फर्स्ट लाइफस्टाइल, और हमारी प्रैक्टिस कुछ कम पड़ गई, तो दिस इज समथिंग लाइक यू नीड टू प्रैक्टिस इट एवरी डे। इसीलिए हम कहते हैं कि ये हमारी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। योग, प्राणायाम, ध्यान, ये सब हमारी लाइफस्टाइल में होना ही चाहिए, डेली रूटीन में होना ही चाहिए, तभी इसके वेरी माइन्यूट 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 आपको बेनिफिट्स दिखना शुरू हो जाते हैं। मे बी किसी के लिए एक साल का वो स्पैन होगा, मे बी फॉर सम ऑफ यू इट विल बी 3 months पीरियड, 6 months पीरियड, 1 year, 2 year, और 2 years, और मे बी 12 years। So it depends upon your physical, mental and emotional state, spiritual practices you are doing, not in this birth, last birth also। जहां से आप आए हो ट्रेवल करते हुए, आप जो कर्म लेके आए हो, आपने जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की है, जो योग प्रैक्टिसेस की है, उसके कुछ इंप्रेशंस रहते हैं, तो दैट क्या करते हैं, स्पीड अप कर देते हैं आपके। बट सिर्फ एक इनिशिएशन मिलना जरूरी होता है। तो आई थिंक आप सबको अभी इसका एक बैकग्राउंड समझ में आ गया। अब चक्र पे फोकस करना। चक्र जो है ये एनर्जी पॉइंट्स जो है बॉडी में हमारे मेन जो होते हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। ये अभी हमारे फिजिकल बॉडी में हम लोग प्रेजेंट वो नहीं है। मैं अगर बॉडी डाइसेक्ट करूंगी तो आपको नहीं दिखा पाऊंगी ये चक्र, ये चक्र।
इट इज देयर इन आवर सूक्ष्म देह, बट अब वो कंसेप्ट यहाँ पे बहुत वास्ट है. सो जस्ट कीप इन माइंड कि ये सूक्ष्म देह में है, ये विजिबल नहीं है बट एक्सपीरियंशियल है. हम इनके इफेक्ट्स हमारे फिजिकल बॉडी पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, करते हैं इनफैक्ट. जैसे जैसे एक्टिवेशन होता है, जैसे जैसे हम चक्र ध्यान करना शुरू करते हैं, एक्टिवेशन होना शुरू होता है, हम उसको एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं. तो ये 7 चक्र, उससे भी ज्यादा चक्र है, सहस्त्रार के आगे भी 2 है, बट हम उसमें अभी नहीं जाएंगे. पहले हम शुरू करेंगे इनिशियल लेवल पे, बेसिक लेवल पे, मूलाधार चक्र, जो जिसके स्थान जो है. अब हमें चक्रों के स्थान अब प्रैक्टिकल वे से देखना है कि हम जब फोकस करते हैं किसी चक्र पे, तो वो चक्र कहाँ पे लोकेटेड है ये आपको पता होना जरूरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो स्थान, लोकेशन, देन बीज मंत्र, क्योंकि हमें उस पर फोकस करना है. तो वो फोकस करते वक्त अगर हम बीज मंत्र, रूट जो मंत्र होता है उसका, वो रिसाइट करेंगे तो उसके वाइब्रेशंस स्पेसिफिक उस चक्र के एक्टिवेशन के लिए बनाए गए हैं, राइट. तो बीज मंत्र जो होते हैं वो तंत्र में आपको अनेक स्क्रिप्चर्स में मिलेंगे. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मूलाधार चक्र पे आप अगर ध्यान कर रहे हो, मूलाधार चक्र ध्यान कर रहे हो, तो आपको बीज मंत्र जो होगा वो लंग, तो लंग जो है वो लंग ही आपको रिसाइट करना है. लंग के ही वाइब्रेशन स्पेसिफिकली मूलाधार चक्र के लिए बनाए गए हैं. तो इनिशियली ये 2 चीजें आपको समझनी जरूरी है. अब ये चक्र का स्थान कहाँ पे है, तो मूलाधार चक्र का स्थान जो है पेरिनियम में बताया गया है. जैसे हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, हमारे जो स्पाइन्स होते हैं, तो स्पाइन्स के एंटेरियर फ्रंट साइड पे हमें हमेशा फोकस करना है. और पेरिनियम मतलब जहां पे हमारा लास्ट वर्टेब्रा खत्म होता है, मंकी बोन या कॉसिक्स जहां पे एंड होता है, टिप ऑफ कॉसिक्स, उसके सामने, उसके एंटेरियरली मूलाधार चक्र लोकेटेड है, राइट. अब ये कैसे करेंगे इमेजिन, तो ये थोड़ा सा इनिशियली डिफिकल्ट होता है कि इमेजिन करना, वहां पे फोकस करना और मंत्र डिसाइड करना, बट प्रैक्टिस इज द ओनली सॉल्यूशन. अभ्यास, अभ्यास ही इसका सॉल्यूशन है. और आपको रोज इसका अगर आप अभ्यास करोगे तो इट्स वेरी सिंपल. और एक टेक्निक है स्थान लोकेट करने के लिए, जैसे हाथों से हम मेजर कर सकते हैं. तो अगर हम हमारी लिटिल फिंगर जो है, अब मेन लोकेशन हमें पता है, मूला जो हमारा मणिपुर चक्र है, नेवल है, नेवल पे मणिपुर चक्र है. हाँ, तो नेवल पे मैंने टिप रख दिया लिटिल फिंगर का, और स्ट्रेट थंब का टिप जहां पे आ गया, दिस इज अनाहत चक्र, यहाँ पे अनाहत चक्र है. फिर अगेन अनाहत चक्र जहां पे है वहां पे टिप ऑफ लिटिल फिंगर रख दिया, और अब थंब कहाँ पे आ गया, दिस इज विशुद्धि चक्र. क्योंकि हर एक का साइज, लेंथ, विड्थ अलग अलग है, तो आपको अपने ही हाथ से मेजरमेंट लेना है. अब ये विशुद्धि चक्र आ गया, यहाँ से थोड़ा सा ये फेस का ये होता है, तो हमें थोड़ा सा ये ऊपर लेना पड़ता है, आज्ञा चक्र. आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र. आज्ञा चक्र तो ये पता है सबको, तो ये मेजरमेंट थोड़ा इधर उधर हो गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं. यहाँ से यहाँ सहस्त्रार चक्र, ये समझ में आ गया. तो इन्हीं पॉइंट्स पे हमें ध्यान करना है. तो यहाँ मणिपुर से हमने स्टार्ट किया, लोअर दो दो चक्र है, तो अगेन थंब को हमें मणिपुर पे रखना है, और फिर ये जहां पे आएगा अपने लिटिल फिंगर, वो हो गया स्वादिष्ठान चक्र. एंड देन उसके नीचे थंब, जैसे सेम वे मैंने मेजरमेंट जैसे बताया वैसे हमें मेजर करना है, वहां आ गया मूलाधार चक्र. और अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली वो हमारे कॉसिक्स के सामने आता है. अगर आप करोगे प्रॉपर उसका मेजरमेंट लोगे, तो
इन स्थानों पे हमें फोकस करना है। तो अगर आप बहुत नए हो इस टॉपिक के लिए तो मैं ग्रुप पे चक्रों का नाम और मंत्र पोस्ट करती हूँ, और आपको आज से सिर्फ वो विजुअलाइज करना है, या देखना है या मेमोराइज करना है, क्योंकि अब बाकी योग टीचर्स को पता है, वो दे आर वेरी मच गेन मास्टरी इनटू इट, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए पहले नाम और बीज मंत्र वो फेमिलियर होना जरूरी है। नहीं तो अभी मैं आपको बताऊंगी लम वम रम यम हम ओम सोहम, तो आप कहोगे ये क्या अलग लैंग्वेज में बात कर रही है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि हर एक चक्र का बीज मंत्र क्या है, उसको आपको मेमोराइज करना है, उससे आपको फैमिलियर होना है। लोअर जो दो चक्र है, मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र, मैं आपको स्क्रीन पे ही एक ये दिखाती हूँ, तो आप थोड़ा सा उससे फेमिलियर हो जाओगे। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे लम, जो मैंने बताया कॉसिक्स के सामने वहां होता है रूट चक्र या मूलाधार चक्र। वम स्वादिष्ठान चक्र। नेवल के यहाँ होता है मणिपुर चक्र। अनाहत चक्र हार्ट के यहाँ होता है। थ्रोट विशुद्धि चक्र। सेंटर ऑफ आईब्रोज आज्ञा चक्र। एंड क्राउन सहस्त्रार चक्र। उसके बीज मंत्र लम वम रम यंग हंग ओम सोहम, यही सीक्वेंस में हमें वो करने पड़ते हैं। अब एक एक चक्र का ध्यान हमें अलग अलग करना है। इनिशियली बेसिक जो स्टेप है, हम जब पहली बार शुरू करते हैं, व्हेन वी आर स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम, वी आर न्यू टू दिस मेडिटेशन, सो वी नीड टू फर्स्ट improve our focus and concentration ability to focus, ये हमें बढ़ानी है। सेकेंड, आपको एक एक चक्र पे वर्क करना है। Always start with Mooladhara chakra because it is related, it is root chakra, it is related with creation, it is related with materialism. मूल आधार, हम मटेरियल वर्ल्ड से बहुत ज्यादा अटैच होते, तो उससे थोड़ा सा कट डाउन होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मूलाधार चक्र का एक्टिवेशन शुरू होना जरूरी है, तभी आपका जो है इंक्लिनेशन, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन ऊपर की तरफ जाता है। अदरवाइज कॉन्शियसनेस एक्सपांड कैसे होता है, ऐसे होता है। राइट तो मूलाधार चक्र, अब हम आज सिर्फ इसी पे फोकस करेंगे कि क्या बेसिक्स है और हमें क्या करना है, और पार्ट 2 में हम प्रॉपर प्रैक्टिकल करेंगे। अभी प्रैक्टिकल करेंगे बट सम पीपल आर वेरी न्यू टू दिस, सो हमें धीरे धीरे ये करना है। तो मूलाधार चक्र, अभी आपको पता है उसका स्थान पता है, वहां पे हमें हमारा अवेयरनेस फोर्सफुली, मे बी विथ पहले फोर्स ही करना पड़ता है, अपने माइंड को वहां पे लेके जाना है, और बीज मंत्र उच्चारण, बीज मंत्र रिसाइटेशन करने हैं। उस वक्त वो वाइब्रेशंस हमें एक्सपीरियंस करने, एटलीस्ट हमें ट्राई करना है कि हाँ वो वाइब्रेशन आई कैन फील एट सम एक्सटेंट, नॉट वेरी मच लाउड या ऐसे कुछ आपको पहले नहीं होगा, बट स्टिल ट्राई टू डू दैट फोर्सफुली। पहले फोर्स करना पड़ेगा, तभी वो फोकस कंसंट्रेशन होगा, अदरवाइज नहीं होता है। अदरवाइज एज आई हैव मेंशन के माइंड इधर उधर जाता ही है, एंड वी जस्ट कीप ऑन रिसाइटिंग लंग लंग लंग, mind is somewhere else and lung is somewhere else, and it's not worth giving your time and your तो वो नहीं होगा, आपको कुछ मिलेगा नहीं उससे, राइट। तो पहले हम मूलाधार चक्र, मैं आप सबको होमवर्क देने वाली हूँ। मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र का मंत्र है लंग और स्वादिष्ठान चक्र का बीज मंत्र है वंग। तो हमें जब तक हमारा नेक्स्ट सेशन प्लान नहीं होता है, तब तक दिन भर में कभी भी वक्त मिलेगा, मे बी यूर इन ऑफिस, मे बी यूर वर्किंग आउटसाइड, कुछ फर्क नहीं पड़ता, चेयर पे बैठ के भी हमें पहले मूलाधार चक्र ध्यान करना है। 1 मिनट से लेके या आधे, जब तक आपका फोकस कितना स्पैन रहता है, टाइम स्पैन दैट यू डिसाइड, आधा मिनट भी चलेगा, बैठना है
फोकस करना है उस जगह पे, आंखें बंद करनी है एंड जस्ट लंग लंग, या फिर इनहेल। अब यहाँ पे ब्रीदिंग कैसे होना चाहिए, अब दो टेक्निक्स है, हम इनहेल करके एक्सेल करते हुए, कंप्लीट एक्सेल करते हुए लंग कर सकते हैं, या एक ब्रेथ में लंग 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 5 कर सकते हैं या 7 कर सकते हैं, लंग 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 के रिपीटेशंस। तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, आप एक ब्रेथ में लंग एक्सेल कर सकते हो। रेशो इनहेल टू एक्सेल 1:2 होना चाहिए, 1 and 2 में लंग। अब लंग पे अनुस्वार है, इंग्लिश में हम LAM लिखते हैं, लम नहीं करना है रिसाइट, अनुस्वार लंग होना चाहिए, लंग नेजल साउंड आता है, लम नहीं, लम नहीं, लंग लंग। तो अब ये टेक्निक समझ में आई, ये आपको आधा से 1 मिनट करनी है, या जितने भी आप कर सकते हो, विथ प्रॉपर अवेयरनेस, विथ being in that moment without thinking of anything else. And वंग, स्वादिष्ठान चक्र, अब ये आप मेजर करके वंग वंग, एक ब्रेथ में 5 या 7 रिपीटेशंस, या 1 फुल ब्रेथ एक्सलेशन वंग, राइट। तो ये आपका रहेगा होमवर्क, और मैं ग्रुप पे अभी कुछ फोटोज भी शेयर करती हूँ, तो आपको थोड़ा और। अब इस हर एक चक्र का एक मंत्र होता है, एक यंत्र होता है। अगर आपको आंखें बंद करके लंग या इससे भी फोकस नहीं हो रहा है, कुछ कुछ लोगों का कंसंट्रेशन बहुत ही लो होता है, उनको नहीं फोकस कर पाते, तो उनके लिए यंत्र होता है, प्रॉपर फोटो, वो आप प्रिंट आउट करके उस यंत्र को सामने रख के उसकी तरफ देख के भी कर सकते हो। अगर आप उस स्पेसिफिक जगह पे फोकस नहीं कर पा रहे हो इनिशियली, तो आपको मैं अगर अभी कुछ फोटोज भेजूंगी, तो उसके आप प्रिंट आउट कलर प्रिंट्स निकाल के वो रख के भी आप, या गूगल पे कहीं पे भी मिल जाएगी, आप टाइप करोगे मंत्र यंत्र फॉर चक्र ध्यान, यू विल गेट इट, तो वो आप कर सकते हो। मेन बेसिक यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि हमें फोकस करना है, प्रॉपर कंसंट्रेट करना है, हमारे माइंड को अपने कंट्रोल में रखना है, विदाउट लेटिंग इट रनिंग हियर एंड देयर। We are going to recite this mantra in that moment, and we are going to focus completely on that mantra, on changes or vibrations which are there appearing in my body while recitation, while focusing, whatever changes are being there, I need to experience that. वही है, बाकी कुछ नहीं, इतना सिंपल है। अगर इसमें आप थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको अपने आप जो भी चेंजेस फिजिकल लेवल पे चाहिए वो आपके समझ में आ जाएंगे। तो अब मूलाधार चक्र के जो भी एरिया होता है वो लोकेटेड है कॉक्सिक्स के एंटेरियरली, तो वहां पे जो भी ऑर्गन्स है, मे बी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, एनस है, देन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, वेजाइना है, देन यूट्रस है, सर्विक्स है, पीनस है, वो सब जो है वो इस चक्र के अंडर कंट्रोल रहते हैं। अगर ये चक्र प्रॉपर एक्टिवेट होने लगा, तो ऑटोमेटिकली इनके जो फंक्शनिंग है उसमें भी इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाता है, और उससे रिलेटेड जो भी आप एलिमेंट्स या सिम्टम्स या डिजीजेस एक्सपीरियंस कर रहे हो, उसमें डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। सो दिस इज साइड इफेक्ट, दिस इज नॉट इफेक्ट. What we are going to practice is something different and something very it's beyond that body and mind and everything. तो वो समझने के लिए हमें बेसिक मूलाधार चक्र से शुरू करना है, राइट। तो मैं मुझे लगता है हम यहाँ पे आज रुकते हैं, और आपको ये 2 चक्रों पे अभी प्रैक्टिस करना शुरू करना है। आपको अगर कुछ क्वेश्चंस है तो अभी आप यू कैन आस्क, and then we will conclude this session. Basic concept and technique, I hope you are now, you understood. वो तो है Doctor,
मुझे ये पूछना था कि नेसेसरी दैट वी टेक केयर ऑफ द टाइम व्हेन वी हैव मील्स एंड ओनली देन अकॉर्डिंगली डू, मींस 2 घंटे पहले बाद में, ऐसे कुछ है व्हेन वी आर डूइंग मेडिटेशन? टाइम, यस, टाइम इज एक्चुअली, अच्छा क्वेश्चन है ये। जैसे फोकस और कंसंट्रेशन मेनली हमारा सुबह उठने के बाद होता है ना, ज्यादातर ओके। मॉर्निंग टाइम में। तो हम अगर प्रेफरेबली मॉर्निंग टाइम है, करेक्ट। आप उठने ओके। के बाद जैसे आप अगर, और वो भी ब्राह्मी मुहूर्त आपने सुना होगा, अभी 5 AM यस। क्लब्स और ये सब आ रहा है। तो उस टाइम का एक अलग ये है कि उस टाइम पे अगर आप मेडिटेशन करोगे तो वो ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि एक तो सब काम होता है, शांत होता है, नॉइज नहीं, कुछ नहीं। एंड ब्राह्मी मुहूर्त इसके लिए कहा गया है कि यहाँ पे सुषुम्ना नाड़ी की भी इन्वॉल्वमेंट, स्पिरिचुअल जो नाड़ी है जहाँ प्राण का वहन उस टाइम पीरियड में होता है, तो आपको उसके बेनिफिट्स ज्यादा मिलेंगे अगर आप सुबह करते हैं तो। अदरवाइज स्टार्ट करने में हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, इवनिंग में भी आप कर सकते हो, एक तो सायंकाल या ब्राह्मी मुहूर्त। बट यस, समझो अगर हम लोग, इज इट मैंडेटरी कि डिनर या लंच या कोई भी टाइम पे, मतलब वी हैव टू टेक केयर ऑफ द फैक्ट दैट मील्स यस, कभी लिया है? प्रेफरेबली एम्प्टी स्टमक। एम्प्टी एम्प्टी स्टमक स्टमक। मैं भूल गई ये बताना। ओके। एम्प्टी स्टमक, थोड़ा सा आपने लाइट कुछ खाया है, पिया है तो इट्स ओके, बट आप ऐसे हाँ, लंच करके फिर मैं बैठूंगी तो नहीं आप बैठते। सो जाओगे। ओके ओके, गॉट इट। नेचुरल टेंडेंसी है ना, अगर हम यस लंच यस करके यस, या डिनर करके बैठेंगे तो हम सो ही जाते हैं। हो तो जाते हैं, यस। यस, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। Namaste, ma'am. नमस्ते। This recitation should be Mansik or Vachik? Depends, आप if you can focus in मानसिक recitation, it's good. अदरवाइज इनिशियल लेवल पे जो है ना, अगर हम लाउड करते हैं तो फोकस ज्यादा अच्छा रहता है। मानसिक करने में भी फिर अगेन थोड़ा सा तमस और ये होना शुरू हो जाता है। तो हम अगर लाउड करते हैं तो इट्स बेटर, एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट विथ मानसिक। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं सो नहीं जाऊंगी या मुझे लिथार्जी नहीं होगी बैठ के, तो देन यू कैन स्टार्ट विथ मानसिक। Thank you, ma'am. So doctor, even if we do for a minute and all to begin with, it's fine, right? Yeah, it's fine. It's fine, but basic rule with awareness, with Full being focus. present. Yes. Yes. Otherwise, people they keep on doing 1 hour, 2 hour, but they don't get the benefits Correct. because they. Okay. आपको पता है अभी क्या होता है कि हम एक तो हम आधा घंटा बैठ ही नहीं पाते हैं इतना। Correct. किसी Lack का of focus. फोकस नहीं है। Yeah. स्कूल में बच्चे भी 45 मिनट्स का एक पीरियड होता है उनका, उसके Correct. बाद वो फोकस नहीं कर पाते। नहीं तो कर पाते। यस यस, तो राइट। हमें तो क्या 1-2 मिनट भी ठीक है, बट मैक्सिमम हमें 45 मिनट्स तक जाना है, ये We दिमाग में। will aim to reach them. यस, Get it. Okay. Thank you. ओके, बट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, दैट इज इम्पोर्टेंट। Correct. थ्री पार्ट तो है, मैं आपको कितना भी उसके बारे में बताऊं उतना कम है। स्क्रिप्चर्स में बहुत बहुत कुछ है तंत्रों में, बट स्टार्टिंग इज इम्पोर्टेंट, प्रैक्टिसिंग, अप्लाइंग दिस इज इम्पोर्टेंट। अदरवाइज रीडिंग और ये तो फिर सबको पता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस जब आप खुद एक्सपीरियंस करोगे ना, मैं आपको एक क्लास में नहीं सिखा पाऊंगी, मैं आपको सब इंफॉर्मेशन दे पाऊंगी, बट आपको खुद को वो एक्सपीरियंस करना है बैठ के कि मैं अब ऐसे बैठी हूँ, whether I can sit straight or not, whether I can keep my spinal column straight और I can focus or not, मुझे वो पॉइंट समझ में आ रहा है या नहीं, कहाँ पे है वो चक्र। अगर नहीं आ रहा है तो मैं मंत्र पे या किसी यंत्र पे मैं फोकस करूंगी पहले, और उस पे फोकस करूंगी तो उसी को देखूंगी। ये सब करना जरूरी है।
तो ध्यान में ये बेसिक स्टेप्स कोई फॉलो नहीं करता है, डायरेक्टली दे जंप ऑन लाइक सिटिंग एंड रिसाइटिंग, और वो नहीं होता है, फिर उससे जो बेनिफिट मिलना चाहिए बिल्कुल नहीं मिलता है। तो आप start, it's better to start and then increase time span Correct. and Okay. everyday practice Every day. without now you all know, those who are my students here, to dirgha kala nairantarya, Patanjali says that dirgha kala nairantarya satkara sevito drudha bhumi, dirgha kal हमेशा. hamesha, nairantarya without stopping, and सत्कार सेवितो मीन्स विथ वेलकमिंग मैनर। ऐसे नहीं कि मैंने बताया इसलिए आप कर रहे हो, हाँ ये करूंगी तो मेरा ये पेन चला जाएगा या मेरा ये डिजीज इसलिए मैं कर रही हूँ, ये निष्काम नहीं हुआ, फिर एक्सपेक्टिंग समथिंग। सो वो भी नहीं। दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, ये अगर आप करोगे तभी आप चक्र ध्यान का फायदा आपको होगा, अदरवाइज नहीं। मैं यहाँ पे बैठ के स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकती हूँ, आप कितने भी क्लासेस ज्वाइन करो, कितने भी गुरु के पास जाओ, जब तक आप ये क्वालिटी के साथ, इस टेक्निक के साथ शुरुआत नहीं करते हो, तब तक आपको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होगा। इट्स जस्ट फैशन, सब कर रहे हैं इसलिए आप कर रहे हो, ऐसे होता है। एंड इट हैपेंस, आई हैव सीन people practicing and experiencing changes, मैंने उनमें changes भी देखे हैं। That's why I'm so much confident कि हाँ ये होता है। Maybe time period different for different period, 3 months, 6 months, 1 year, 2 year, maybe 10 years. But अगर आप यहाँ पे करना शुरू करोगे, एटलीस्ट यहाँ पे स्टार्ट करोगे, maybe next birth you will land into some different place जहाँ पे और हायर इससे आप शुरुआत करोगे। ये भी श्री कृष्ण ने कहा है भगवत गीता में। अच्छा, कि अर्जुन से कहते हैं ना कि क्यों करूं मैं ये सिर्फ विषाद योग में, कि आप ये करो वो करो योग करो, मुझे अगर कुछ हो ही नहीं रहा इफेक्ट, तो बोल रहे कि क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो, अभी नहीं लेकिन नेक्स्ट बर्थ में इसके फल मिलेंगे। So no act goes without any reward. There is always a reward, but don't wait for it. You will get it. Yes. Okay, got it. That is the main idea behind this. Correct. Yes, Pallavi. No, ma'am. Hello. दिवसांनी सगळे आपले पतंजलीचं ऐकलं, खूप छान वाटलं. थँक्यू सो मच. पल्लवी, आवाज येत नाही, काही प्रश्न विचारते का तू? ओके. So I think yes, Ma'am, yeah. But in which Indian scripture this chakra meditation mentioned? Particular any scripture? there are lots of scriptures, but in Lalita Sahasranam first they mentioned chakra, then Sri Vidya, Dashavidha Mahavidya, Tantra, in this all if we will go through all Vedas and so lots of references, but particularly Hatha Yoga Pradipika for Kundalini you can read. Then for chakras, most simplified ये हमारा है ना बिहार स्कूल ऑफ योगा, उनके बुक्स दैट इज सफिशिएंट, सिंपलीफाइड है उसमें बहुत। ओके, तो if you want to read, you can buy Bihar School of Yoga book, Tantra, Meditation in Tantra. नमस्ते मॅम. नमस्ते अश्विनी. छान झालं, परत एकदा रिवाइज झालं मॅम.
Ashwini, she is my student, so she knows. Yeah, आपण बरेच दिवस रिव्हिजन झाली नव्हती माझी पण इवन परत एकदा क्लासरूम मध्ये गेले मी, छान वाटलं. मी तेच विचार केला सुरुवातीला की एवढं एक आपण जवळजवळ 2-3 महिने आपण चक्रांवरती लेक्चर केले होते. It's very खूप सुंदर सांगितलं मॅम. in next session I will try to explain from Lalita Sahasranam. I will try नक्की to नक्की. explain. मी तुम्हाला आत्ताच रिक्वेस्ट केलं होतं कारण मला दिवाळीत ना एकाने सांगितलं तू हे रोज वाच म्हणून ललिता सहस्रनाम. पण प्रोनाऊन्स करायला खूप म्हणजे येत आहे पण खूप वेळ लागतो. नाही, ललिता सहस्त्रनाम ऐकलं तरी चालेल सुरुवातीला. युट्यूब वर व्हिडिओज आहेत, ऐकलं तरी चालेल. आणि मी जे आय एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट चक्रास मेन्शन इन ललिता सहस्त्रनाम. So we will conclude today. Ma'am, 1 second. That Patanjali, that shloka you said, na, what all you should do. Please, will you write it in the group or so Yes. that we remember in the Sanskrit language? Yes, I will write it down. Okay. And I Alright. will post in group. Yes, yes, please. Okay. That is very nice. Very nice. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, so we will conclude with 3 Om recitations. Yeah. Sit straight, adopt Dhyana Mudra. Close your eyes gently. Breathe in. Om. 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 Om Shanti Shanti Shanti. Please rub your palms. Gently press on your eye, ears, again on your eyes. Slowly open your eyes in your palms. Namaste. So next session I will plan and I will post. We will discuss on group timing and day, and accordingly we will. Okay. Bye. Good night. Thank you, Good ma'am. night. Thank you so much. Thank you, Bye. ma'am. Good Good night. night. Good night.
not decided. I will only take medicines 4 times a week. Far away from home. No, 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 14 రోజుల్లో బయటకే